Hello learners. Today in our English grammar class we learn about future perfect continuous tense. It's my YouTube channel Joseph Spoken English Classes. I request you to subscribe this video and learn spoken English. Today our class is about future perfect continuous tense. First of all, I tell you the structure of making the sentences in future perfect continuous tense. Subject plus shall या will plus have been plus ing form of verb plus time plus object if it is necessary. In this way we can construct sentences in future perfect continuous tense. I am going to write some examples of the sentence. She will have been playing for 2 hours. He will have been singing since morning. They will have been reading stories for many days. I shall have been staying there for many years. We shall have been teaching since next Friday. You look at these sentences. Here, whether it is a singular subject or plural subject, we have to use have, not has. She is singular. Still, we have to use have, not has. This is very important. आपको ध्यान देना है कि she will have been playing. She will has been नहीं. She will have been. यही ध्यान देना है. अब इस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि present perfect continuous tense. She has been reading for 2 hours. She has been reading. He has been reading. Ramesh has been singing. तो वहाँ देखिए present perfect continuous और future perfect continuous में ध्यान देने वाली मुख्य बात ये है कि present perfect continuous में सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर है तो हैज लगाया जा रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी भी आप हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, पर भले वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. बहुत सारे बच्चे इवन मेट्रिकुलेशन का भी बच्चे मैं देखता हूँ कि होमवर्क देने का समय, एक्सरसाइज का देने का समय ये गलती अक्सर करता है. शी विल हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours. ऐसे कभी यूज नहीं करना है. शी विल हैव बीन, विल के बाद हमेशा हाउ लगेगा, हैज नहीं लगेगा. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. हम सभी बच्चों को इस बात को विशेष रूप से समझाया जाता है. बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में रहता है कि शी विल हैज बीन क्यों नहीं लगता है.
फ्यूचर परफेक्ट में हैज का प्रयोग नहीं होता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैज नहीं यूज करना। अभी इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला सेंटेंस बनाया जाएगा, विल शी हैव बीन प्लेइंग for 2 hours. Will she have been? Will she has been? Will she have been playing for 2 hours? इसके बाद इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो she will not have been playing for 2 hours. इस तरह हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। अभी दिया हुआ सेंटेंस को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। He will have been singing since morning. He will has been नहीं, has been का प्रयोग मत कीजिए, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में आप हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, आप हैज का प्रयोग यही मान के चलिए कि फ्यूचर में हैज का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, भले वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। शी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव संग ए सॉन्ग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह प्रयोग करना है। अभी ही विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका इंट्रोगेटिव है विल ही हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका नेगेटिव है विल ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, दे विल हैव बीन रीडिंग स्टोरीज, will they have been reading stories, they will not have been reading stories, I shall have been staying there, I shall not यहाँ लगेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ not लगेगा, she will, shall और have का बीच में not लगेगा, she, I shall not have been staying there for many years, shall I have been staying there for we shall have been teaching since Friday, we shall not have been teaching since Friday, shall we have been teaching since Friday. In this way we can change the affirmative sentence in future perfect continuous tense into interrogative and negative. Now our tenses, classes of tenses have been completed. We have already studied all the 12 tenses, and I once again repeat them. Present indefinite, present simple, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Again past tense में आएगा तो past indefinite tense, इसको simple past tense भी कहा जाता है, past continuous tense, past perfect continuous tense, future indefinite या simple future tense, future continuous tense, future perfect and future perfect continuous tense. One more thing I used to say during my other classes, continuous tense is also called progressive. Present progressive means present continuous. या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार होने वाले चीज को हम लोग प्रोग्रेसिव कर सकता है। इसलिए कई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम देख लेंगे तो कंफ्यूजन में मत होइएगा कि कौन सी टेंस है, तो हम पढ़े नहीं है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप देखेंगे तो आप समझ लीजिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर,
उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव कहने का मतलब कंटिन्यूअस है, सिंपल कहने का मतलब इंडेफिनिट वाला है। तो इस तरह हम आपको बारो टेंस समझा दिया है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे बनाना है ये भी आपको बता दिया गया है। आप लोग इसको अच्छा से सीख लीजिए। इसके बाद कल से हम लोग अगला वीडियो में आपको बताएंगे यूज ऑफ टेंस, कहाँ क्या चीज़ प्रयोग कहाँ करना है, इस भी सीखना जरूरी है, तभी हम लोग स्पीकिंग करने के लिए। मेरा 90 वीडियो का कोर्स है, अभी इसी में लगभग बहुत सारे वीडियो हो चुका है। तो ये पूरा वीडियो में एक एक दिन एक एक वीडियो के हिसाब से आप लोग सीख लेंगे तो आराम से 90 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग आपको आ जाएगा। सो आई एम वेरी श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर learning these tenses and uses of tenses. I am giving the video, I am doing this video and you watch them carefully and do exercise in your notebook. आप यही सोचेंगे हम केवल पढ़कर सुनकर केवल सुन लेंगे तो हम सीख लेंगे, ये गलत बात है। आप जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको एक बार दो बार अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए, बिना लिखे आप पढ़ नहीं सकता है। धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो और चैनल जोसेफ स्पोकन इंग्लिश को स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी।